Hello students and welcome in the online session of class 6th subject science chapter 5 separation of substances. Students, we are covering the topic separation, different methods of separation of the substances. Okay, some of them we have already covered. We have done hand picking, winnowing, threshing, sieving, then sedimentation, decantation, filtration, evaporation and condensation. So many methods of separation we have completed. Now, today we are going to see the topics. Can water dissolve any amount of substance? Can we add anything in any amount to water? Okay. Then what are solutions? What is the saturated and unsaturated solutions? And at lastly, the churning topic. Okay. So let's start with the first topic, that is, can water dissolve any amount of substance? Okay. So let us find out. So we have gone through soluble and insoluble. In this chapter, in the start, you have done the soluble and insoluble terms, right? In the last chapter also you have done. So soluble means anything which mix in water is called soluble, and anything which does not mix in water, it is called insoluble. Fine. So we have gone through soluble and insoluble in our previous chapter, and this topic somehow connects to that term. So here we have to again see that soluble is a substance that get mixed with water, and insoluble is the substance that do not mix with water. Okay. Like if you take sugar and you take water. So what will happen if you mix them? The sugar will definitely dissolve in water and it becomes a solution. Okay. It becomes soluble in water. So you can say sugar becomes soluble in water. चीनी जो है वो पानी में completely mix हो जाती है, इसीलिए हम sugar को क्या बोलते हैं कि it is a soluble substance. And if you take sand and water, अगर आपने मिट्टी और पानी लिया है, so there will be no solution. Why it is written no solution? Because when you mix sand and water, it will not mix. मिट्टी पानी में dissolve नहीं होगी and all the sand will settle down. वो नीचे बैठ जाएगी. ठीक है. तो अगर कोई चीज मिक्स नहीं होती है तो हमारा सोल्यूशन नहीं बनता है. ओके, इट विल बी अ मिक्सचर ओनली. दिस विल नॉट बी अ सॉल्यूशन. So insoluble is the substance that do not mix with water. Now let's see the next topic. One activity that takes some water in a beaker. Right? आपने पानी एक बीकर में या ग्लास में आपने क्या किया, पानी लिया. ये जो आप देख रहे हो, this is called beaker. ये भी कांच का ही बना होता है. This is called beaker. If it is not there, you have to take a glass only. अब आपको उसमें क्या करना है, यू हैव टू टेक सॉल्ट. उसमें आप नमक मिलाएंगे. नमक नहीं अगर आपको पसंद है तो यू कैन टेक शुगर ऑल्सो. आप ये एक्टिविटी शुगर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं. लेकिन सॉल्ट क्या होता है, क्रश्ड फॉर्म में होता है, जल्दी डिजॉल्व होता है. सो यू विल गेट द रिजल्ट्स अर्लियर. नाउ अब आपको क्या करना है, यू हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सॉल्ट ऑल्सो. इफ यू विल टेक दिस वन कांच का अगर आप ग्लास लेंगे तो यू विल सी बेटर फ्रॉम आउटसाइड ओनली. ओके. सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, गो ऑन एडिंग द सॉल्ट इन वाटर. ओके. अब आपको धीरे धीरे करके उस पानी में क्या करना है, नमक मिलाना है या चीनी जो भी आप मिला रहे हैं, एंड स्टर इट वेल. हिलाते रहना है आपको उसको. ओके. अब आपने क्या किया, सबसे पहले 1 चम्मच मिलाया तो यू विल सी दैट द सॉल्ट विल गेट डिजॉल्व वेरी फास्टली. ओके. But after adding enough quantity to salt, we will notice that some salt is undissolved and settled at bottom. अब आपने पहले 1 चम्मच मिलाया, वो डिजोल्व हो गया. आपने 2 चम्मच मिला दिए, वो भी डिजोल्व हो गया. आपने 3 मिलाया, हो सकता है वो भी डिजोल्व हो जाए. लेकिन इस तरह से मिलाते मिलाते at one time you will see that now no salt is getting dissolved in water. अब नमक जो है वो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है एंड द सॉल्ट विल रिमेन सेटल्ड एट द बॉटम. फिर वो नमक धीरे धीरे नीचे पानी में आपको दिखने लगेगा, बॉटम में बैठ जाएगा. इट विल नॉट डिजोल्व, क्योंकि उस पानी की जो कैपेसिटी है सॉल्ट को डिजोल्व करने की वो खत्म हो गई है. ठीक है. दैट दिस टेल्स दैट नो सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर नाउ. ठीक है, मतलब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है. अब कोई और सॉल्ट उसमें डिजोल्व नहीं हो सकता है. ठीक है. और अब आप अगर उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, वो सारा सॉल्ट नीचे बॉटम में ना यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेट हुआ हुआ. ओके. सो इसका मतलब ये है कि दिस कंक्लूड्स दैट दिस इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. इसका मतलब ये है कि अब जो आपका सोल्यूशन है, आपका जो डिजोल्व वाला सोल्यूशन है, वो कैसा हो गया है, इट हैज बिकम सैचुरेटेड. वो सैचुरेटेड हो गया है. कोई भी चीज सैचुरेटेड हो जाती है मींस अब उसमें हम और ऐड नहीं कर सकते हैं.
उसका जो मैक्सिमम लिमिट था एडिशन का वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे अगर आप अलमीरा में बुक्स डाल रहे हो तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बुक्स ही आप डाल सकते हो, जितनी उसमें जगह है आप उतनी बुक्स डाल सकते हो, राइट। लेकिन आप अगर हाउस में ऐड करते रहोगे तो आप देखोगे कि वो बुक्स जो है नीचे गिरने लग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो अलमारी अब कैसी हो गई है, इट हैज बिकम सैचुरेटेड। ठीक है, अब उसमें और जगह नहीं है। इसी तरह से सॉल्यूशंस का भी एक पॉइंट आता है जब वो दे बिकम सैचुरेटेड हो जाते हैं, मीन्स मैक्सिमम जितना उनमें आ सकता था उन्होंने डिसॉल्व कर लिया। आफ्टर दैट दे हैव नो कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट इन इट। ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम और ऐड नहीं कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट by the activity we come to conclusion that जो हमारा सोल्यूशन होता है उसे हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक सोल्यूशन होता है जो सैचुरेटेड होता है और एक होता है जो अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, जिसमें नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व, मतलब अब उसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकते हैं, नो मोर सोल्यूट टू बी डिसॉल्व। ओके, मतलब उसकी कैपेसिटी पूरी फुल हो गई। नाउ यू कैन सी हियर कि वो सॉल्ट जो है नीचे बैठ गया है क्योंकि इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। बट अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे, जिसमें हम और सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, मोर सोल्यूट डिसॉल्व, जिसमें और डिसॉल्व हो सकता है, वो होता है अनसैचुरेटेड वन, राइट। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशंस दैट सोल्यूशन किसको बोल रहे हैं हम। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सोल्यूशन उस मिक्सचर को बोलते हैं जो होमोजीनियस, मतलब जो बाहर से दिखने पे बिल्कुल एक जैसा लगता है, उसमें कुछ भी अलग बैठा हुआ या अलग तैरता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। होमोजीनियस, पूरा एक सा मिक्सचर नजर आता है, तब हम उसे बोलते हैं सोल्यूशन। जैसे हमने नमक डाला तो नमक पूरा पानी में डिसॉल्व हो जाता है, बाहर से देखने पे आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें ये सॉल्टी वाटर है या ये प्लेन वाटर है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं, जो बिल्कुल एक से नजर आते हैं बाहर से, उसमें कोई चीज ऐसे बैठी नहीं होती अलग अलग, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। ओके, इन सच अ मिक्सचर अ सोल्यूट इज द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस नोन एज सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन कब बनता है, ठीक है, जैसे कि हमने लिया ये पानी, राइट, तो पानी जो होगा, जो हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, मिक्सचर का वो पार्ट, वो सब्सटेंस जो हम ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। ठीक है, एंड जो चीज हम कम क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे कि अब हम इसमें सपोज सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं, आप इसमें डाल रहे हो सॉल्ट, तो पानी तो आप ग्लास भर लोगे लेकिन सॉल्ट तो एक ही चम्मच डालोगे उसमें। ठीक है, तो जो चीज हम कम लेते हैं, जिसको हम उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। सॉल्ट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड सॉल्यूट, SOLUTE, सॉल्यूट, राइट। और पानी को हमने क्या बोला यहाँ पे, सॉल्वेंट। तो जो चीज हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो चीज हम उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं और कम क्वांटिटी में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। तो जब सॉल्यूट, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्यूट लिया शुगर और सॉल्वेंट लिया वाटर, तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है स्टूडेंट, इट बिकम्स अ सॉल्यूशन। जब आप इसमें सब ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन, राइट। जब शुगर डिसॉल्व हो जाएगा पानी में तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, मींस जिसमें सब सेम होता है, चारों तरफ सेम ही दिखता है। और सॉल्यूशन के दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, सॉल्यूशन के दो पार्ट्स हैं, एक होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो वी गेट सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हमने किसको बोला, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन हैविंग मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट, जिसमें बिल्कुल कैपेसिटी तक फुल कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट डिसॉल्व हम कर चुके हैं। ठीक है, सो अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन containing maximum concentration of a solute dissolved in the solvent। मतलब जो सॉल्वेंट था, जो पानी था हमारा, उसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या था, सॉल्ट, वो डिसॉल्व कर चुके हैं, तो वो हो गया है सैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल टेक वाटर एंड शुगर, पुट द शुगर इन वाटर एज मच एज यू कैन, जितनी आप डाल सकते हो डालो। एक पॉइंट आएगा वेयर शुगर विल सेटल डाउन, शुगर नीचे बैठने लग जाएगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी।
But if we heat the same solution, now add some more sugar, the sugar will be dissolved. लेकिन फिर आप अगर उसको हीट करते हो तो थोड़ी सी शुगर उसमें और डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है. दिस सेज दैट शुगर कैन बी एडेड ऑन हीटिंग. अगर आप उसको गर्म करोगे तो उसमें और चीनी डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसको गर्म नहीं कर रहे हो तो शुगर क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा. सो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. And what is unsaturated? Unsaturated means solution that contain less amount of solute. जिसमें कम solute है, solvent में अभी भी जगह है, ये जैसा पानी है इसमें अभी भी जगह है कि इसमें और हम ऐड कर सकते हैं, ऐसा को बोलते हैं unsaturated solution. जैसे if you put half spoon of salt in water, पानी का एक गिलास में आपने आधा चम्मच स्पून डाला है, तो अभी उसमें हम और ऐड कर सकते हैं, दैट मीन्स अभी तक वो सोल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है. ओके, नाउ लेट्स सी विद द डायग्राम हियर. ये देखिए, ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है और ये सैचुरेटेड है. अनसैचुरेटेड में ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, दे आर सॉल्यूट पार्टिकल्स. इट कैन बी सॉल्ट, शुगर, जो भी आपने लिया है. सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत कम है, मीन्स हम इसमें और ऐड कर सकते हैं. बट हेयर इन सैचुरेटेड यू कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. इसमें बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑलरेडी दिख रहे हैं. ओके, अब हम इसमें और एडिशन नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये कैसा हो गया अभी, सैचुरेटेड. इट हैज बिकम सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज चर्निंग. चर्निंग का मतलब होता है शेकिंग अप क्रीम और होल मिल्क टू मेक बटर. ये जो हम दही से या दूध से मक्खन निकालने के लिए जो इसको इस तरह से हिलाते हैं, शेक करते हैं, दिस इज कॉल्ड चर्निंग. दिस इज कॉल्ड चर्निंग. So churning is the process of shaking up the cream or whole milk to make butter. Shaking up the cream, ठीक है, इस तरीके से उसको शेक करना, हिलाना, इसको हम बोलते हैं चर्निंग. और ये चर्निंग होने के बाद क्या होता है कि मक्खन जो है वो दही से निकल के अलग ऊपर आ जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चर्निंग मेथड. ओके, सो लेट अस सी द समरी व्हाट वी हैव डन टुडे. सो आज हमने किया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड मीन्स ऐसा सोल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इट्स कैपेसिटी इज फुल. एंड अनसैचुरेटेड मीन्स द सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, इसमें हम ऐड कर सकते हैं. ओके, सोल्यूशन किसको बोलते हैं, सोल्यूशन वो होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो कि बाहर से कैसा लगता है, एक सा दिखता है. इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, and churning means shaking of the cream to get it separate from the curd. जब हम दही को हिलाते हैं इस तरह से, शेक करते हैं ताकि मक्खन अलग हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं churning. Okay, so this is all about the separation of substances. Students, the lesson is over here. You please read the textbook, read the lesson and complete your notebooks. Okay, you are not posting me on the Google Classroom. Please send pics of the work done on the Google Classroom. Fine. So we'll meet in the next session. Till then, everyone, stay home and stay safe.